اٹس می عمر. 22 سال ہو گئے اور سفر تو بہت سارے کیے، مگر آج جس سفر کی تیاری ہے یہ سفر ذرا ہٹ کے ہے، کیونکہ یہ سفر ہے مدینے کا. چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. اچھا آقا بلاتے ہیں، چل پھر مدینے کو چلتے ہیں. ایکچولی شروعات سے شروع کرتے ہیں. یہ جو چھوٹا سا ننھا سا منا سا پیارا سا کیوٹ سا لڑکا ہے نا، یہ میں ہوں. سوری تھوڑا زیادہ ہو گیا. اینی وے اس لڑکے کو نہ کچھ نیا کر کے سیکھتے رہنے کا جنون رہتا ہے. اور ہاں ویسے تو یہ لڑکا بچپن میں ہی سائنسدان ہوا کرتا تھا، سائنٹسٹ، اور اسی طرح آرٹسٹ، پینٹر، کارپینٹر، الیکٹرک انجینئر، سول انجینئر، مکینیکل انجینئر، ٹیلر، اور بھی جو بولو وہ تھا یہ لڑکا. اور پھر ایک دن اس سے کوئی کہتا ہے کہ بیٹا سفر کیا کرو کہ سفر انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے. اس دن کے بعد یہ لڑکا تھاؤزینڈ کلومیٹر کے سفر اکیلا کرتا رہتا ہے. جہاں بھی اس کا دل کرتا ہے وہاں جھٹ سے پہنچ جاتا ہے. پھر ایک دن اس کی نظر سے ایک ایسی دلکش جگہ کا عکس گزرتا ہے کہ یہ وہاں جانے کے لیے اتاولا سا ہو جاتا ہے، انڈیسائسو. مگر وہاں کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا جب تک کہ وہاں سے انویٹیشن نہ آ جائے. مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں. کیا کریں، سفر ہی ایسا ہے. اب خود سے تو جا نہیں سکتے، بلاوا آ جائے اس کے لیے جو بھی اسباب کر سکے کوشش کرتے ہیں. ویسے بھی سنا ہے کہ سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو سفر تو بہت سارے کیے، جیسے کہ ابھی ایک لائیو پروگرام اور سوشل میڈیا کی اسپیشل ریکارڈنگ کے لیے جانا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. وہیں سر جھکائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں، مدینے کے آقا دو عالم کے مولا، مدینے کے آقا دو عالم کے مولا، تیرے پاس آئیں یہ جی چاہتا ہے، تیرے پاس آئیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں. اچھا سفر بھی صرف یہی نہیں کیا، ریکارڈنگ والا، اور اس سفر میں بھی صرف میں نہیں ہوں، مدینے کے سفر میں ہم 5 لوگ ہیں. بائی دا وے ان سے ملیں، یہ ہیں ابو ابراہیم و اسماعیل حاجی عمر مدنی، اور یہ ہیں ہمارے رہنما ابو ملاز حاجی نواز مدنی، اور یہ رونق سفر ابو کریم مولانا فہیم مدنی، اینڈ یہ ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب ابو واقد مولانا حامد مدنی، اینڈ فائنلی یہ ہیں ابو حفظ. اب ان کے بارے میں کیا ہی بتاؤں. ایک جگہ ہم دوست بیٹھے اکٹھے کھانا کھا رہے تھے، مشورہ ہوا کہ مل کے مدینے چلتے. ہم سب کا تو قافلہ نہیں بن سکا، تو ایک صاحب جو ہے وہ مدینے سے ہو بھی آئے اور بقیہ خاموش ہو گئے. آج نہیں تو کل صحیح، لیکن مدینے جانا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. پھر
थोड़ा थोड़ा कुछ जिक्र होता रहा कि हज पे जाना चाहिए। हामिद भाई ने जिक्र किया कि मेरा हज का ज़हन है, मेरा भी ज़हन बनाया। ज़ाहिरन वैसे असबाब नहीं थे तो मैंने इतनी बात नहीं की। दरअसल 2018 में ना अल्हम्दुलिल्लाह हज में हाजिरी हुई थी। वहाँ जाके ऐसा फील हुआ कि हर तरह की टेंशन से बताना आजाद हो जाता है बताना, और बड़ा मजा आया। मैंने तो यहाँ तक जहन बना लिया कि मैं ना अपने अब्बू जी से बात करूंगा कि मैं 365 दिन में जो वर्किंग डेज होते हैं वो मुकम्मल दुकान पे ड्यूटी दूंगा और सुबह टाइम से आऊंगा, टाइम से जाऊंगा वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने हर साल हज पे जाना और यही ज़हन बना। लेकिन उसके बाद कुछ कोरोना के मामलात आ गए और दीगर भी कुछ आजमाइशें होती हैं, तो इस साल भी मेरा हज का इरादा था लेकिन वो नसीब में नहीं था। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह आइंदा साल से। जब यहाँ आए ना तो फिर बातें चल पड़ी कि कोई ना कोई हमारा मुतालबा था कि चलो शहजादा तार उनका बयान हो। फिर अपने निगरानी शुरा तशरीफ आए थे। तो ये जो जगह खरीदी है ना, इतनी जगह पे स्टेज बना था, यहाँ पर निगरानी शुरा थे। हमारा बयान हुआ ना तो नीयत कर ले कि ये जगह हमने खरीदनी है। निगरानी शुरा की कदम ला के अब जगह खरीद रही है। मैं वो रास्ते में बता रहा था कि निगरानी शुरा का ऐसा बयान था, ऐसा माहौल, वो यही जगह थी। हाँ जी। तो फिजान मदीना की तामीर के लिए पैसे भी जमा किए थे, ऐलान किया था। हमें गुनाहों से छुटकारा अता फरमा, जहन्नम से छुटकारा। अब हुआ ये कि ख्यालों में तो मदीने का सफ़र है और हम पहुंच चुके हैं गोजरा में एक इज्तिमा में शिरकत करने। स्टैंड निकालना भूल गए थे। है जिसे मिली ये अज़मतों की रात, जो चाहती हो तुमको करेगा खुदा अता। इसकी इनायतों की है ये नेमतों की रात, गम का इलाज आज की शब दस्तयाब है। ये जाफिजा है साअतें ये फरहतों की रात, कर लो मरज के वासिते रब से दुआ अभी। ये है शिफा की रात, ये है राहतों की रात। हम जो मदीने पहुँच जाए हम जो मदीने तो खुद को ना पा ये जी चाहता है मदीने को जाए। ये जी चाहता है मुक़द्दर जगह, ये जी चाहता है मदीने को जाए। अच्छा, हर सफ़र में बातें यही चल रही हैं कि मदीने जाना है, मदीने जाना है, और इल्तिजाएं भी चल रही हैं, दुआएं भी चल रही हैं और सिफारिशें भी चल रही हैं कि बस मदीने का टिकट मिल जाए। कई सफर इससे मुताल्लिक बन रहे हैं। कश्मीर का सफर, गोजरे वाला सफर, फिर हम सैयद शाहिद को लेने गए थे लाहौर, तो फिर वहाँ भी रास्ते में यही बात हो रही थी, कहाँ जा रहे हैं, दाता दरबार, क्या लेने जा रहे हैं, टिकट लेने जा रहे हैं। फिर उसके तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते बाद मीराने पाक ने भी फरमाया कि मदीने का टिकट लेने चले। फिर हाजिरी हो गई। फिर हमने ये इल्तिजा पेश की कि टिकट मिल जाए। उसी सफर के वापसी पर रास्ते में बांग्लादेश का तय हो गया। अब फिर इस्तिराब के ये चले जो बेहतर है खिदमत दीनी। अच्छा, ये वाला सफ़र मुझे अकेले तो बिल्कुल नहीं करना, बस नेक लोगों के पीछे लुक छुप के हाज़िरियाँ देनी है। और इधर तो बांग्लादेश जाने का तय हो गया है। अब जब मुझसे बात की तो मैंने कहा सही है, फिर बांग्लादेश चलते हैं। तो जब वहाँ के लिए तैयारियाँ शुरू की तो पता चला कि इसके वीज़ा प्रोसेस के लिए कुछ ज़्यादा वक्त चाहिए और वो हमारे पास था नहीं। ऊपर से रमज़ान का आखिरी अशरा आ गया तो हम लोग तो बैठ गए एतिकाफ में। आपका तो वो जैसे चिड़िया रोजा होता है ना, तो चिड़िया वाला एतिकाफ था। मुझे नियत करनी थी मगरिब से पहले पहले, मैं भूल गया। मुझे याद आया मगरिब के बाद, तो मैं मोतकिफ तो नहीं हो सका लेकिन मोतकिफ नुमा जरूर बन गया। अब इसी एतिकाफ में कहानी शुरू होती है बकिया 3 लोगों की। बाहर मदीना में सुन्नत एतिकाफ की नीयत से बैठ गए। रोजाना ही जाते थे, नवाज भाई भी, मैं भी, फहीम भाई एतिकाफ में बैठे थे और भी 150 से
शायद इस टाइम में बैठे थे। तो इत्तिकाफ में हम बैठे हुए थे, हमारे एक जाने वाले इस्लाम भी आए, वो ये कुछ इस तरह का काम वगैरह करते हैं, तो कुछ उनसे इस तरह ही बात हुई कि पैकेजेस क्या चल रहे हैं, उस पर उन्होंने कोई उसकी रकम वगैरह बयान की। तो हम में से एक इस्लामी ने कहा कि मेरे पास तो 50,000 रुपया है। हमने कहा फिर आपको क्या वाला से उम्रा कर लें, क्योंकि मदीने जाने के लिए तो इतने पैसे नहीं, ज्यादा चाहिए। तो इस तरह करके मजाक में वहाँ बात हुई थी। ईशा के बाद हम दोबारा बैठे और हमने फिर इसको सीरियस डिस्कस किया कि कोई ऐसा प्लान, निजाम, सिलसिला कि हम ना ये हाजिरी का सिलसिला करें। तो 22 रमजान को मुझे मेरे दोस्त ने पोस्ट भेजी कि मैंने ट्रैवल एजेंसी का काम शुरू किया। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार कोई सस्ता सा पैकेज हो तो हमें बताओ, हम गरीब लोग भी मदीना देख लें। तो उन्होंने कहा आप ज़हन बनाएं, इंशाल्लाह हम आपको पैकेज ऐसा दे देंगे। तो फिर हमने मजीद डिस्कस की कौन सा ऐसा प्लान हो कि हम ना ये अमलन कामयाब इसमें हो जाए। फिर उसमें एक राय कि एक ये वे इख्तियार करें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, 4-5 प्लान हमने आपस में डिस्कस किए। प्लान 1, 2, 3, 4 और प्लान 4 जो था ना वो सेलेक्ट हो गया। फिर मैंने वहीं बैठे उमर भाई को कॉल किया, मैंने उनसे पूछा उमर भाई मदीने चले। अच्छा, हमें नहीं पता था कि उधर भी सफर मदीना का प्लान बन रहा है। हमारा तो अभी पासपोर्ट भी लाना बाकी था। ये फाइनल हुआ रमजान के आखिरी अशरेफ कि बांग्लादेश नहीं जा सकता। जिस दिन ये फाइनल हुआ अगले दिन फहीम भाई की कॉल आ गई कि मदीने चले। हम तो यही कहते, मैं तो कब से हूँ तैयार, ठीक है चलते। अब मुझसे बात की तो मैं तो पहले ही ऐसा मौका ढूंढ रहा था, तो मैं भी तैयार हो गया। हज की भी बात हो रही थी, फिर उम्रे की भी हो रही थी कि चले। उमर भाई ने भी 3-4 दफा कहा कि चले यार उम्रे पे हो आते हैं शवाल में। तो मैंने फिर व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया। ग्रुप क्रिएट करके उसमें मैंने अपना पासपोर्ट शेयर कर दिया, फहीम भाई ने अपना पासपोर्ट शेयर कर दिया। अब एतिकाफ तो जोरों शोर से चल रहा है, और जब आया ना योम विलादत अत्तार तो अब बच्चे भी आ गए फिजान मदीना। अब बच्चों की डिमांड ये हुई कि अत्तार टावर के टॉप फ्लोर पे जाना है। तो बच्चे ये मेरी हालत देख रहे हैं आप लोग। मुझे तो बहुत डर लग रहा है दोस्तों, मुझे इस मंजिल पे ना बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं फिर भी आ गया। और हाँ गाइस, हमें यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, सुंदर सुंदर हवाओं में मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हम नीचे चलते हैं बस अब, और करना भी क्या है हम लोग। आप सबको 26 रमजान मुबारक मुबारक हो। तन्हा चला तो साथ तेरे हो गया जहां, मीठा तेरा कलाम इलियास का। अब इसी 26वीं पे हुआ अहमद रजा भाई का निकाह। निगरानी पाकिस्तान हाजी शाह साहब ने मेरी खुशकिस्मती निकाह पढ़ाया उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह। अबू बकर मोहम्मद अहमद रजा बिन अब्दुल सत्तार बिनते रजा मुस्तफ़ा बिन गुलाम 12,000 रुपए हक में है जो कि गैर मुअज्जल है। इसके बाद आपकी निकाह में दे दो। जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू होद भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। हमने ये जिन बना लिया हुआ था पहले, जब हमारा रात में डिसाइड हुआ कि 1 मई 2023 को हमने जाना है इंशाअल्लाह। मेरा पासपोर्ट भी अभी आना था और मैं एतिकाफ में था। मैंने भाई को कहा आपते हैं, इतवार आ गया, फिर एक दिन फिर भाई भूल गए, फिर नहीं आया। घर में जाके बात की, उनको कुछ बताया कि यूं करके सिलसिला है। तो वालिद साहब की तरफ से इजाजत थी कि ठीक मरहबा ओके। वालदा को मैंने कॉल की 28वें रोजे, मैंने कहा माँ जी मैं मदीने जा रहा हूँ। तो माँ जी ने मुझे कहा अच्छा बड़ी खुशी की बात है बेटा, जाओ अल्लाह खैर करे। वालदा कुछ सोचा विचार में थी। एक दिन इसी में गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरे दिन मैं घर में बैठा हुआ था, बातचीत तो हुई, कुछ ये भी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। वहाँ एक सांस मिल जाए, यही है ज़िस्त का हासिल। अब 27वीं की रात जाग कर दूल्हा मियाँ को साथ लिया और हम लोग चल पड़े पासपोर्ट लेने। अभी हमारा सफर है एक जगह का टोबे जा रहे हैं भाई, टोबे। और क्या बताऊं आपको, आगे सफ़र होगा, कुछ ना कुछ खुद ही होता रहेगा और आपको पता चलता रहेगा। प्री प्लान कुछ भी नहीं है, मैं इतना बस बता देता हूँ, जो होगा आपके साथ शेयर होगा। आका
तो हम लोग जा रहे थे पासपोर्ट लेने के लिए, किस्मत अच्छी थी मिल गया। पासपोर्ट पकड़ते ही सबसे पहले तो पिक्चर्स बनाई और वीज़ा लगवाने भेज दिया। हामिद भाई और नवाज भाई, इनको मैंने कहा आप किसी और ट्रैवल एजेंसी वाले से भी बात कर लें कि हो सकता है वो पैकेज आसान दे रहा हो। वीजा लगने के लिए दिया ना पासपोर्ट, उस वक्त भी इतना ज़हन नहीं बना हुआ था, पैसे भी नहीं दिए थे जिससे ये हो के वीजा लगने के लिए दिया और लग के आ जाए। घर भी उस अंदाज से भी मशवरा नहीं हुआ था क्लियर, कुछ बातचीत तो हुई थी और वीजा लगने के लिए दिया था कि देखते हैं। उन्होंने पैसे लिए बगैर ही वीजा लगा के भेज और खबर आ गई कि टिकट भी आपकी 1 मई की पहले से हुई है। हमारे वीजे लग के भी आ गए। मैंने फिर इनको कॉल की, मैंने कहा भाई आप किसी से बात ना करें, तो वीजे लग के भी आ गए, तो सारा मामला ही अल्लाह का शुक्र ठीक हो गया। अफसोस के साथ हम आपको सनराइज नहीं दिखा पाएंगे, बिकॉज सन तो राइज हो चुका है और बादलों ने साथ ही नहीं छोड़ा सन का। उमर भाई सोए भी नहीं है गाड़ी पर, सही बात है। मैंने ना असल में नींद को छेड़ा है थोड़ा सा, एक बार नींद छिड़ जाए ना उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई है। अब बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है, कोई दर्द वर्द तो नहीं हो रही है। यार ये बहुत अच्छा आ रहा है इसका, अमेजिंग। अभी वापस चलें। फिर नवाज भाई और हामिद भाई दोनों के पासपोर्ट भेजे तो दोनों रिजेक्ट हो गए। अब हुआ यूं कि ईद की छुट्टियां भी करीब आ रही थी और मेरा और हामिद भाई का भी नहीं आया। सऊदी एम्बेसी ने जो नुसुक ऐप है गालिबन, उसके जरिए जो ई वीजा लगता है वो रोक दिया है हज की वजह से, और वो बिल्कुल सुन्नत बंदी कर दी है। और अब संडे है तो अब मंडे को पता चलेगा कि क्या करते हैं। और फिर ईद की छुट्टियां गुजरी, तजब्जुम में होगा नहीं होगा, ऑफिस ओपन हुए, दोबारा से उम्मीद लगी कि इंशाल्लाह हो जाएगा। मगर अभी 1 मई से चंद दिन पहले हम बैठे हुए थे, मैं ऑफिस में था और वो कंपनी वाले साहिब भाई का मैसेज आया कि आपके वीजे में प्रॉब्लम है। इस वक्त आपको परेशानी हुई होनी भी चाहिए, क्या होगा, वक्त भी करीब है। वहाँ एक सांस मिल जाए, यही है ज़िस्त का हासिल, वो किस्मत का धनी है जो गया दम भर मदीने में, यही है ज़िस्त का हासिल, यही खुशी मेरी, यही है ज़िस्त का हासिल, यही खुशी मेरी, दरे रसूल पे हो जाए हाज़िरी मेरी। आप जहाँ हम वहाँ, सॉन्ग 4G। ये अहमद भाई का घर आ गया, गाँव वाला। शहर वाला भी दिखाएंगे आपको किसी। तो रास्ते में मेरा गांव भी आ गया, तो फिर गांव की तरफ हम निकले। उसमें स्कूल देखा, सब्जा देखा और मेरा घर भी उसमें देखा, और खुद हम मजे करते करते वापस फैसलाबाद आ गए। मेरे वालिद साहब वो कुछ ना कुछ अतियात दावत इस्लामी को पेश करते हैं, कल देते हैं, परसों किसी वजह से ना अलग करके रखे हुए थे। इस्लाम भाई की कॉल आई जो नाजिम अल मदीनतुल इल्मिया के, जो मैं लेने आ रहा हूँ। मैंने कहा आप आ जाएं। तो इधर से वो हमने ना उनको अतियात हैंड ओवर किए हैं और साथ ही उनका आ गया कि आपका 5 मिनट के अंदर अंदर की बात कर रहा हूँ, तो उन्हीं 5 मिनट के अंदर अंदर बैठे बैठे वीजा हमारा अप्रूव होके आ चुका था। दिल भी चाहता है और ना हो तो फिर क्या होगा, इसी सोचो विचार में ना कुछ वक्त गुजरा। थोड़ी देर बाद ना अचानक से मुझे ख्याल आया कि मेरी वालदा की तरफ से मुझे इजाजत मिल चुकी थी। जैसे ये ख्याल आया ना तो मैंने साथ अपना ज़हन बनाया कि मुझे ना रिलैक्स हो जाना चाहिए, हो जाएगा। इसके बाद शायद जस्ट 1 या 2 सेकंड बाद उनका मैसेज आ गया कि आपका वीजा प्रोसेस क्लियर हो चुका। ये वीजा अक्सर मदीने
اب سفر کی تیاریاں تو چل ہی رہی ہیں, بیگ ویگ تیار ہو رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی مشورہ ہوا کہ بال بھی اپنے چھوٹے چھوٹے کروا لیں. یہی خوشی میری یہی ہے زیست کا حاصل, یہی خوشی میری. اور گھروں میں اپنے جو چیزیں اویلیبل تھیں, احرام اور دیگر بیگ وغیرہ جو بھی, ان کو نکالا, تیار کیا, چیزیں جو کم تھیں وہ پوری کی. میرا خیال ہے کہ میرے تو اعتکاف سے اٹھ کر آتے ہی اس سے پہلے ہی میرا سامان سارا پیک ہو چکا تھا. انتظار کرتے کرتے آخر 1 مئی سے پچھلا دن آیا, اور اس دن تو پھر بھرپور تیاری ہونی چاہیے تھا. پھر ہم نے وہ تیاری کی, تیاری کر کے ہم نے گاڑی بک کروا لی ہوئی تھی. اس گاڑی میں سب سے پہلے میرے گھر سے مجھے لیا گیا, پھر آگے حامد بھائی کو لیا گیا, پھر وہ میری طرف تشریف لائے اور پھر ہم فیضان مدینہ حاضر ہوئے. یہاں سے ہماری 2 شخصیات عمرین یہ کرم فرما ہوئی, اور یوں فجر کی نماز ہم نے فیضان مدینہ میں ادا کی. ایک تو نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہیں ود خوشبو, اور پھر سہانی سی صبح ہے, اور موسم بھی بڑا ٹھنڈا سا, میٹھا سا, پیارا سا, بڑا مزے کا ہے, اور اوپر سے سفر ہے مدینے کا. اب دل کی کیا کیفیت ہوگی یہ تو جس کو پتا ہے اس کو پتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گاڑی میں تھے تو ماشاءاللہ حامد مدنی بھائی خیر خائی لے کر آئے تھے, ناشتہ بنا کر لے کر آئے تھے. ہم نے گاڑی میں ہی ناشتہ کیا. اب رستے میں نعتیں پڑھتے, کچھ مسائل پڑھتے وغیرہ, عمرے کے مسائل بھی پڑھتے رہے. رش بہت زیادہ تھا ایئرپورٹ پہ. ہم ایک سائڈ پر نیچے ہی چوپار لگا کر بیٹھ گئے سارے, اور پھر وہیں پر ہم نے ناشتہ کیا. آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ ناشتہ بڑا بابرکت ہے, کیونکہ یہی ناشتہ ہم نے گاڑی میں بھی کیا ہے, یہاں بھی کیا ہے, اور اتنا کہ ہے کہ یہ آگے بھی لمبا چلے گا. کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہم ویٹ کرتے رہے, تقریباً 1-1.5 گھنٹہ میں وہاں لگا. کھچنے لگا دل سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہم اندر چلے گئے اور وہاں پہ احرام باندھے. ہمارے احرام باندھتے باندھتے ہی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا. پھر کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ بار بار اعلانات ہونے شروع ہو گئے کہ جلدی جلدی پہنچے, یہ جی فلائٹ سرین ایئر لائن کی پوری ریڈی ہے, جلدی پہنچے, یہ آخری اناؤنسمنٹ ہے. اور ہم جلدی جلدی بھاگے جہاز کی طرف. جہاز میں اب ہم تو چلے گئے, مگر ہمارے ایک صاحب عمر بھائی, ابو حفص عمر بھائی, لو جی ان کا بورڈنگ کارڈ وہ نہ ملے. اب وہ سیکورٹی والے تو جہاز میں نہ جانے نہ دیں, اور ظاہر رول بھی ہے. اب یہ کبھی ادھر دیکھ ادھر دیکھ, اس کے پاس اس کے پاس. میں اندر سے جا کے وہ دیکھ رہا ہوں, بھیا آپ کے پاس تو نہیں, ان کے پاس بھی نہیں. کرتے کراتے اب پریشانی, اور اوپر سے اعلان, اور ادھر سے سیکورٹی, ادھر سے فرد بھی آخری ہم سے داخل ہونے والے, اور پرواز کا بھی ٹائم تھا, اور بورڈنگ کارڈ بھی نہیں مل رہا. اب نہیں مل رہا تو کیا کر سکتا ہوں, اپنے ہاتھ میں تھوڑی ہے. جس کو چاہیں بھیجیں, جس کو چاہے نہ بھیجیں. مدینے والے سے میرا سلام کہنا. شہر مکہ میں انٹر ہونے اور مدینہ پاک کے کبوتروں کو ان کی بریانی کھلانے کا جو مزہ ہے نا,
یہ صرف فیل ہی کیا جا سکتا ہے.